the IVC seal has Shiv on it. वो it's like what is called as, जो मुझे बहुत खराब लगता है, लोग बहुत करते हैं इस चीज़ का, superimposition of the present onto the past. Right. आज अगर मुझे इसके साथ parallel में Best example of superposition that can be found in Harappa is this face. This set of acts, that is oral sex, can also be performed between two willing women. The Kama Sutra says Kathakalis with scores of sculptures on temples such as the Khajuraho temple. Well, not only homosexuality, people in Hinduism used to get animals such as snakes and other things and put up their ass just for pleasure as a dildo. Hello guys, welcome to Twitch, welcome to my live stream. Suvozy is live. बहुत दिनों बाद Twitch पे आए हम लोग और ये हमारा टाइम रहेगा अब से 11:30-12 बजे हम लोग आएंगे because that's the only thing we can achieve. आज फ्राइडे हो चुका था but still मैं टाइम पे नहीं आ पाया. So I thought कि क्यों नहीं हम लोग let's go and be live for some time and let's do our thing because I think consistency of time तो हो नहीं पा रहा. So let us be consistent in being inconsistent. Okay, so today we have a lot of content for you guys. A lot of things are happening. So today is the final day that we have finally got some good content to watch. So we're going to start with official PeeingHuman. Official PeeingHuman ने एक video launch किया and the video is called on Hysterical Records. It's called Harappa versus Hindu Rashtra episode 1 of Hysterical Records. So देखना तो बनता ही है. Anything regarding history and जिसमें हिंदू जातिवाद ये सब रहेगा, दैट इज इन आवर एरिया राइट नाउ. हम लोग काफ़ी वीडियोस कवर कर चुके हैं उसके ऊपर. तो एंड आवर पॉलिटिक्स इज काइंडली सॉफ्टली इज मूविंग टूवर्ड दैट एरिया. सो वी आर सो मच इंटरेस्टेड टू गो टूवर्ड्स दैट एटलीस्ट एंड सी व्हाट हैपन्स बिकॉज इट इज़ अ बिग इशू. cannot deny that, right? So whatever happens is going to happen, but we are following it. It's interesting, really interesting. Here we go. Official PeeingHuman. The banner says, I hate Congress, Ma Kasam. I love it. Okay, start from the top. Harappa versus Hindu Rashtra. aka अतिहास्य. अतिहास्य. इतिहास को अतिहास्य कर रहा है. Okay. With this eyeshadow with this girl. Eyeshadow with Itihas and Dr. Ruchika Sharma. As we have seen, it's a very interesting concept. We can dig into it, so probably we are going to dig into it. The video is a little long. We can delve into some shots after this. It's an interesting concept, boys, right? We are getting इतिहास के साथ अगर eyeshadow मिल रहा है, so I mean that's a good thing. Let's go. Let's watch this Harappa and Hindu Rashtra, and I think we have our lovey-dovey boy with us. हमारा Beer Biceps is with us in the beginning. Let's go. He's the intro of this podcast, of this video. आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? It is 100% real. महाभारत और रामायण दोनों 100% रियल है. आज के पोस्ट ट्रूथ एरा में Not even 99% is fully believable कि 100% real है, but still prove नहीं हो पा रहा इन लोग से. वाइल्ड क्लेम्स जो रिलीजियस माइथोलॉजी को रियल हिस्ट्री बताने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब पॉडकास्ट पे सुनना तो आम बात हो गई थी. और अब ऐसी बातें टीवी पर भी खुल के की जा रही हैं. Roughly when do you think the incidents of the Kurukshetra war took place? When did the incidents of Mahabharata Who is this old chap? In between 1900 to 1700, this event happened. तो इस 1900 to 1700 में I think we have been fighting Mughals, I guess. Not Mahabharat, but ठीक है, whatever they are saying, let's see. जानेंगे कि इन हिस्टोरिकल क्लेम्स में कितनी सच्चाई है. वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ हिस्टेरिकल रिकॉर्ड्स AKA अतिहास्य. Okay. I have been reading it so wrong for so long because of my brain. My brain just picks up words like this. So अगर वो it's written historical records, but my brain has been reading it historical records for so long. So it has to do with something of my brain. So इसीलिए अतिहास्य है. Okay, hysterical. Oh my god.
They have worked on it. Nice. जॉर्ज ऑरवेल ने अपनी बुक 1984 में कहा था, Those who control the past control the future, and those who control the present control the past. आज इंडिया में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां प्रेजेंटली पावर में बैठी बीजेपी गवर्नमेंट हमारे पास्ट को मैनिपुलेट करके अपने हिंदू राष्ट्र के फ्यूचर प्लान का रास्ता तैयार कर रही है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, इसलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। तो भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र होना ही पड़ेगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही आवश्यक है। संविधान में परिवर्तन होगा, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाया जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तब कितना I laugh at this बाबा लोगों का जो बुद्धि है इतना ही सीमित है। उनको लगता है एक शब्द हटाएंगे, सेक्युलर हटा देंगे तो फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। Oh, they don't even know what they're asking. That's the point, right? कि these crazy people are like being hosted in the TV channels and they have been given all this freedom to talk about it. That's crazy, right? Interesting. आनंद आएगा। और एक बात ध्यान रखना, जो भी हिंदू राष्ट्र के रास्ते में आएगा उसका नाम और निशान मिट जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और एक सेक्युलर रिपब्लिक को एक रिलीजियस राष्ट्र बनाने के मेजॉरिटेरियन एजेंडे के तहत इंडियन हिस्ट्री को रीराइट किया जा रहा है ताकि हिंदू सुप्रेमेसी एस्टैब्लिश हो पाए। और इसीलिए एक बीजेपी सीएम और आरएसएस के हेड दोनों ने रिसेंटली क्लेम किया कि इंडिया का रिलीजियस कल्चर पिछले 5000 साल से सेम रहा है। 5000 साल से मेरा देश को, मेरा जन्मभूमि को लोग भारत नाम से जानता था। आज भी 5000 भारत नाम से जानता था। इसका हिंदू रिलीजन का नाम किसी को नहीं पता, भारत किसी को नहीं पता होता है। इंडिया सबको पता है, एब्सोल्युटली पता है, ऑब्वियसली। हिंदुस्तान पता है लोगों को, बिकॉज मुगल ने नाम दिया था वो। 5000 साल का हिस्ट्री जो है कभी चेंज नहीं हुआ इनका, लेकिन इनका सती प्रथा उठ गया, इनका चाइल्ड मैरिज उठ गया, इनका सब कुछ उठ गया ऐसा, बट स्टिल दे आर स्टिल द कांस्टेंट सनातन। साल पुराना इट्स अ फनी वीडियो ब्रोस। सनातन धार्मिक जीवन जो भारत का आज भी यहाँ देखने को मिलता है, वैसा का वैसा देखने को मिलता है, वैसा ही। पर ये एक बहुत ही वीक और इनएक्यूरेट क्लेम है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 5000 साल पहले हमारी हिस्ट्री में क्या चल रहा था इसके हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमारे पास हैं। हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड सिविलाइजेशन है, जो ब्रॉन्ज एज के टाइम एग्जिस्ट करता था अलोंग विद इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड चाइना। पर ये इन सबसे बड़ा था इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन। इस सिविलाइजेशन की 1000+ साइट्स। इसको बोलते हैं रिसर्च करना और प्रॉपर्ली उसको प्रेजेंट करना। ये गपोड़ गाथा है, झूठी बात है, मिथ्या, इतना मिथ्या इधर उधर फैला के क्या फायदा? व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोपेगेटिंग this kind of false information? They want to control the past, right? Because they're controlling the present. That's the only idea. Well, yeah, WhatsApp is the medium which allows you to present all this kind of bullshit ideas to a mass, which is being happening in India. So yeah, BJP has control of this WhatsApp. That's the idea. को डिस्कवर किया जा चुका है, जिनसे पता लगता है कि यहाँ की सिटीज बहुत ही वेल प्लान्ड थी, जहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम्स थे, और प्रोबेबली दुनिया के फर्स्ट इंडोर टॉयलेट्स, प्रोटो शावर्स और पब्लिक पूल्स और डस्टबिन्स भी थे। इस एरा के हजारों सील्स पाए गए हैं, जिनमें एक हरप्पन स्क्रिप्ट भी मिलती है, पर आज तक ये स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हो पाई है। और कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि शायद ये कोई स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स या एबिकस टाइप का कोई सिस्टम है। उस समय की दूसरी सिविलाइजेशन से मिले सील से ये भी पता लगता है कि हरप्पा सिविलाइजेशन और उस टाइम की बाकी सिविलाइजेशंस में ट्रेड रिलेशंस थे। और मेसोपोटामिया में हरप्पन सिविलाइजेशन को मेलुहा नाम से जाना जाता था। अर्ली 1920s तक These are the information जो हमें बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़े हैं, and these are the things that which has remained the same. But अभी लोग new history, pseudo historians are coming up with the new concept, new knowledge, information. कहाँ से dig कर रहे हैं किसी को नहीं पता. Just because they are Brahmins, they can just produce anything, and they are going to they going to ask people to believe them because they are Brahmins. I mean, awesome shit, isn't it? हरप्पा और मोहेंजोदारो मिलने से पहले इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री बुद्ध के टाइम यानी अराउंड 600 BC से स्टार्ट होती थी। तो ये जानने के लिए कि 5000 साल पहले हरप्पा सिविलाइजेशन में कोई रिलीजन था कि नहीं, मैंने बात की प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका शर्मा से। You are the professor. आपने बच्चों को पढ़ा, आपने पढ़ा, प्रोफेसर आप हैं। और हिस्ट्री पर अपने YouTube चैनल पर वीडियोस भी बनाती हैं। तो डॉक्टर रुचिका से मेरा पहला सवाल ऑफ कोर्स, Yo, look at this Dr. Ruchika's page.
she's so awesome. She has a page called Eyeshadow and Itihas with Dr Ruchika Sharma. We're going to check her videos out after this, right? So I'm a doctorate in history and teach history for a living. I can't get enough of talking about history, so I'm here talking about some more on it. Oh my god, she's a history nerd. Awesome. And with a eyeshadow on it, so it's going to be eye candy for us to look into it. It's क्या amazing. हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रिलीजन था? Of course religion था. There's no doubt about this because हमें बहुत evidence है. We Okay. have found very interesting seals जहाँ पर rituals depicted हैं. So for example, there is a seal called the tree goddess seal, wherein there is a woman, she's emanating from a tree, and उसके आसपास लोग ऐसे सर झुका रहे हैं. So we know that she probably that person Interesting. is worshipped in some way. There is of course the very famous pashupati seal, जिसको लोग आज मानते हैं कि probably represents Shiv, which is absolutely incorrect. There is actually nothing in that seal that shows that it represents Shiv. One of the biggest thing that people think is that उस seal में Shiv इसलिए है because he is sitting in a yogic posture. So इस seal को पशुपति seal बोलना ही गलत है ना? Just because he is sitting in a posture, उसको पशुपति नाम दे रहा just to connect with Shiv. That's the idea, right? उसके इस seal को नाम देने से गलत है ना? फिर call it something else. That's it. Sure, Shiv is a yogi, but Shiv is a Puranic god जिनका उससे पहले रुद्र है जो Vedic god है. Now Rudra is not a yogi. Again, why is not a Shiv? Rudra is not Pashupati. He's Pashugna, somebody who kills animals because he's a destructive force, right? वो जो seal है. But he's also not real, right? Seal. Actually, उसका technical name है seal 420. It's basically a shaman. Woo! It's called a seal 420, boys. Pure coincidence. मुझे बता दो seal का नाम कुछ भी दे दो. And at last they decided this is seal 420, bro. No doubt about it. This is seal 420. He's chilling. He's chilling in the forest with cool animals around him. He's just doing it because he's a cool dude, obviously. This is seal 420. Let's go. Right? इसको shaman भी बोलते हैं. Shaman. One Shaman? who, Yeah. will appropriate the powers of an animal. So for example, वो bull की powers appropriate करके strong हो जाएगा and will heal you. The IVC seal has Shiv on it. वो it's like what is called as, जो मुझे बहुत खराब लगता है, लोग बहुत करते हैं इस चीज़ का, superimposition of the present onto the past. Right. आज अगर मुझे इसके साथ parallel मिल best example of superposition that can be found in Harappa is this face. Oh, let me hold it. Oh, please. Oh my god. Look at this, bro. Look at the similarity of it. It's so awesome. You cannot deny it, bro. Cannot. गया तो मैं उसको बस उस पे चिपका दूंगा. और ऐसा ही सुपर इम्पोजिशन ऑफ Oh yeah, अभी ये चौड़ा का वीडियो did Harappan civilization simply vanish? अभी ये चौड़ा का ये वीडियो. Oh, that means Modi ji is a time traveler or Modi ji is living elixir life that basically. But हमने देखा है मोदी जी का younger age के photograph. Then I think Modi ji is a time traveler. Nothing else can describe it. Probably हमारे फ्यूचर में टाइम मशीन डिस्कवर हो जाता है एंड मोदी जी फिर पास्ट में जाते हैं और हड़प्पा में मोदी जी बनते हैं, वहाँ पे फिर से मोदी बनते हैं ऐसा. सो नाउ वी फाइंड हड़प्पा में सेम स्टैचू बिकॉज मोदी हैज ट्रैवल्ड टू द पास्ट एंड बिकम द मोदी देयर दैट ही इज करेंटली हियर. नाइस. अमित शाह का मूर्ति बाकी है निकालना हड़प्पा से, देन वी आर डन. ऑन टू द पास्ट. हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक और आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग करने वाले जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ASI संजय मंजुल ने खुद किया. दिस इज ओरिजिनल चैरियट. दिस इज द ओरिजिनल चैरियट जो हम ये है हमारा IAS ने एक्सकवेशन से निकाला. इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस पे चढ़ के वॉर कर सकता है. दिस इज वॉर चैरियट. एलीट क्लास. ये एलिट क्लास वॉर चैरियट है. ओके ओके कुछ तो डाउट हो रहा है मुझे इस पे. दिखाई देता है जिसकी चर्चा
लगातार चाहे रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो। बेसिकली इनका क्लेम था कि ये रामायण महाभारत वेद कहाँ चला में गया? यूज होता था और हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट में बार बार जिसका मेंशन है। तो मैंने डॉक्टर रुचिका से पूछा कि क्या ये सही है कि आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से वॉर में यूज किए जाने वाले हॉर्स चैरियट्स मिले हैं? No, so there is a difference between a spoked wheel Oh my and a God. normal wheel. So for example, Nice. Harappa में we found a lot of bull carts, जिसके ऊपर wheel है, but there are no spokes in it. And it's a full wheel. Nice. Spoked wheel is the unmistakable symbol of the Rigvedic civilization. वहाँ spoked wheel के chariots में. क्योंकि वो हॉर्स बेस्ड है। Horse का तो लेकिन ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन का ये जो बात कर रहा है कि ये हॉर्स बेस्ड है और ये स्पोक बेस्ड है, ये इमेज के ऊपर बेस्ड है, राइट? ये सारे कंसेप्ट जो है ये इमेज के ऊपर से आ रहा है। तो ऑल दिस कंसेप्ट बेस्ड ऑन इमेज, देन इमेज has not been produced on a Rigvedic era, right? Whatever the era might be, it might be 200 to 300 years earlier, but this image has been produced very recently. Therefore, it looks very recent. I mean, the spokes on the wheels are recent technologies, right? As per that. the Rigvedic civilization. वहाँ What is spoked wheel के Rigvedic chariots. civilization? क्योंकि वो हॉर्स बेस्ड है। हॉर्स का तो एविडेंस हरप्पन सिविलाइजेशन में कोई मिलता ही नहीं हमें। That's Because true. India is not a natural habitat of the horses. It's too hot. So the horses come post the Indus Valley civilization. जी, और Indus Valley civilization agricultural. absolutely. But the people who come from the steppes Wow, are passed well over. made. The people who are called the Arya. The Aryans. जो कि This indigenous is लोग नहीं, what is इस important. land के जिसमें Let's हम go. आज रहते हैं वो यहाँ से नहीं। यहाँ से नहीं थे। वो हॉर्सेस लाए और ब्राह्मणिकल रिलीजन या वैदिक रिलीजन जो है उसका बर्थ उन्होंने किया। ये देखो, अब होगा चालू एक्चुअल पॉइंट कि कहाँ से आए ये ब्राह्मण्स लोग, कहाँ से आए, बाहर से आए, अंदर से आए, कहाँ से पैदा हो गए ये। लेट्स गो। जब से सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब से सनातन धर्म है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। Archaeologically and otherwise linguistically, there is so much of difference, at least 500 years का difference between the Indus Valley civilization declining and the first wave of foreign migrations happening. तो माइग्रेशन का भी कुछ- look at this, ये क्या बताया? ये बता रहा है Indo-Aryan migration. There's a difference between migration and invasion. Many people think that Aryans has invaded India so that and have established their religion called Hinduism or Brahmanical culture or anything like that, right? But it was a migration. Migration is like people fled from that religion or came for purpose of business or something like that, maybe trade or something, and they settled over here, accepting the the rituals and culture of this or probably modifying it to the extent that they try to impose it on us, something like that. Declining and the Let's first see. wave of foreign migrations happening. Yeah, the माइग्रेशन DNS. का भी कुछ एविडेंस नहीं है। The idea that Aryans are coming from outside, बहुत लोग ये मानते नहीं है। And मैं यही टर्म यूज करूंगी, मानते नहीं है, because it's only a belief. Because now it's proven beyond a doubt कि वो Right. क्या है। There are 2 genetic studies, one in cell, one in science. This is not just मेरी study नहीं है. Just to put it out there, 124 scholars in total, including historians, including geneticists. The formation of human population in South and Central Asia, an ancient genome from the Indus Valley civilization. etc. have done it, and I would encourage everybody to read it. एक Right. एवरेज इंडियन के जेनेटिक डेटा में 52% इंडस वैली से आता है, 12% आर्यन से और 36% फर्स्ट इंडियंस या फिर Oh, wow. अंडमानीज लोगों से। आर्यंस के बारे में जो अर्लीस्ट थ्योरी थी उसके हिसाब से हरप्पन सिविलाइजेशन का एंड आर्यन इन्वेजन की वजह से हुआ था, क्योंकि इस सिविलाइजेशन के लोगों के पास कोई आर्मी या सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं थे। बट ये Right. आर्यन इन्वेजन की थ्योरी हर तरह से और हर तरफ से रिजेक्ट हो चुकी है, और आर्यंस के आने की जो थ्योरी साइंटिफिकली प्रूवन और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसे Nice, कहते हैं very आर्यन very well माइग्रेशन made. थ्योरी। Nice. Problem ये है, लोग आज सोचते हैं Aryan migration and Aryan invasion is the same. They're not. They're two very different theories. Aryan migration is the Look. one which is academically the most sound. अगर माइग्रेशन भी होता है तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आपको कल्चरल चेंज दिखेगा। अलग टाइप, अलग काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, अलग अलग चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 साल कुछ से भी नहीं है। कल्चरल कंटिन्यूटी है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। तो दिखाओ ना, BBR आर्किटेक्चरल दिखा दो 5,000 साल कि 4-5 हजार साल से आप राम मंदिर बना के आ रहे हो। दिखा दो मुझे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कि कुछ भी नहीं है बता रहे हो ये। अभी ये चौड़ा को दिमाग तो है ना, फटेगा तब चलता है कि वो सही बताएगा। ऐसा पैसा मिला है उसको, पैसे के लिए ही कर रहा है वो।
नहीं तो क्या सूडो बता रहा है फेम के लिए, सिंपल सूडो हिस्टोरियन विदाउट एनी मतलब प्रूफ, विदाउट एनी प्रोवोकेशन कैसे करेगा? ही इज जस्ट डूइंग इट फॉर द मनी, आई गेस, फॉर द फेम, दैट्स इट। न्यूज कल्चरल थ्योरी को उनके यूट्यूब पर बैठे माउथपीस ने 10,000 साल बना दिया। इससे ज्यादा बोगस थ्योरी कोई हो नहीं सकती, क्योंकि सच्चाई ये है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में इनॉर्मस डाइवर्सिटी रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर पर्शियन, ग्रीक, चाइनीज ओरिजिन के एम्पायर्स रहे हैं, जो सब यहाँ अपने अलग अलग कल्चर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाए। और अगर इंडियन हिस्ट्री में हम देखें कि अखंड भारत के आइडिया के क्लोजेस्ट सबसे बड़े एम्पायर्स कौन से रहे हैं, तो दे हैपन टू बी अशोका का बुद्धिस्ट एम्पायर और मुगल एम्पायर ऑफ औरंगजेब। तो ऐसे सिचुएशन में ये क्लेम करना कि और उसके बाद वी नो ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश एम्पायर who took over the entire region, the entire continent, चाइना से लेके इंडिया से लेके सारे साउथ ईस्ट एशिया, सारे पूरा सब कुछ। हमारी कल्चरल कंटिन्यूटी सेम बनी रही है। इसका हिंदू सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करने के अलावा कोई और पॉइंट नहीं नजर आता। राइट, लेट्स गो। धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। और इसीलिए चाहे कोई माने कि हम सतयुग में रहते हैं या कलयुग में, मैं मानता हूँ कि हम एक पोस्ट ट्रूथ युग में रहते हैं, जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉइंट डायरेक्टर टीवी पर आके ये क्लेम कर सकते हैं, When did the incidents of Mahabharata happen? Roughly. In between 1900 to 1700, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन के एंड का पीरियड है। एक ऐसा पीरियड जहाँ पर सिटीज डिसमेंटल हो रही थी, लोग माइग्रेट हो रहे थे। हमें बताया जा रहा है कि इसी टाइम सोफिस्टिकेटेड वेपन्स, पैलेसेस एग्जिस्ट करते थे और एक लार्ज स्केल वॉर हुई, जिसका एक भी प्रमाण हमें आज तक कभी नहीं मिला है। महाभारत का प्रूफ हमें नहीं मिला है। इसकी बहुत एक्सकवेशंस हुई हैं पहले भी। पीबी लाल डिड इट, ही इज फेमस फॉर दिस। ही एक्सकवेटेड हस्तिनापुर एंड ही वाज बड़े एंथुसियास्टिक लेवल में गए कि हमें हस्तिनापुर के तो बहुत अच्छी वो डिस्क्रिप्शन, वो बहुत अच्छा अंदर से पैलेस वैलेस निकलेगा। मड ब्रिक हाउसेस मिली उनको। ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। बुद्धा मिल गया होगा। वो द्वारका भी क्लीन करते थे। नहीं, दैट्स एसआर राव। बट उधर भी ऐसे है कि कुछ बहुत इररिलेवेंट मिला है और उसको वो सीधा कनेक्ट कर देते हैं रिलीजियस टेक्स्ट के साथ। प्रॉब्लम पता है क्या है? व्हाट एसआर राव क्लेम्ड ही डिड इज मरीन आर्कियोलॉजी। पर आई मीन ये कंट्री में अभी प्रॉपर आर्कियोलॉजी, ओवरग्राउंड आर्कियोलॉजी में इतना प्रॉब्लम है, देयर इज अ लॉट ऑफ question marks. He is doing marine archaeology in the 60s, 70s. I think she's talking about the marine. Acha, this is the one. Marine archaeology of the Dwarka, I guess. Record from the IRS conducted excavation in the forecourt of Dwarkadish temple and found remains of the 9th century Sri Vishnu temple. Alok Tripathi, a marine archaeologist earlier with ASI, okay, Archaeological Survey of India, and now at Assam University, Silchar has come to the conclusion that there are no evidence to identify Dwarka. अपने आप में बहुत बड़ी बात है। People are under the impression he found an entire city underneath. 10,000 साल पुरानी, कोई 5,000। हाँ, so the numbers are exaggerated. वहाँ क्या मिला is exaggerated. Right. The finding of the Dwarka is not something जो इतनी अच्छी एक्सकवेशन है कि लोग उसको साइट करते करते ही मतलब academic circle, it is actually considered as one of those examples like this is a warning sign, something you should not do in archaeology. तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है। तो 20 साल पहले ये खुला करेगा, मिल गई अंडर द ओशन, उसी जगह पे नियर द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ द्वारका। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। राइट, इस प्रकार की सही बात है मोदी जी। मोदी से जो बोलता है ना मुझे अच्छा लगता है, वो सही बोलता है। दूसरी बात है, रामायण में इट्स ट्रू, सो राइट, कि श्रीलंका जाने के लिए हमें एक राम ने और हनुमान ने एक ब्रिज बनाया। दिस इज आल्सो फेक, राइट? राम सेतु आज मिला है वो ब्रिज, वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ नेचुरल ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है पूरा। दुनिया में इससे पुराना मैन मेड स्ट्रक्चर है ही नहीं, इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का। मॉन्यूमेंटल सो वंस अगेन ये रामायण का भी प्रूफ हो गया। अगर आपने भी राम सेतु पर हुआ ये क्लेम सुना है और आपको भी लगता है कि ये सच है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई मैन मेड ब्रिज नहीं बल्कि कोरल रीफ का एक स्ट्रक्चर है जो पानी के अंदर है। ये क्लेम इतना वीक और इनएक्यूरेट है कि बीजेपी मिनिस्टर ने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि हमें राम सेतु का कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला है। पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेने वाले अंधभक्त ये बात कहाँ मानेंगे? वो तो बढ़ चढ़कर भगवान राम की एज एस्टैब्लिश करने में बिजी हैं। हमारे यहाँ तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है, मोदी इज ब्रिंगिंग वन ट्रम्प कार्ड आफ्टर अनदर। दिस इज लाइक ही इज द बेस्ट ट्रम्प, ही इज द एस ऑफ द ट्रम्प, एस ऑफ द व्हाट इज इट, एस ऑफ स्पेड ही इज। लेट्स लिसन। जब नासा के प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई तो 7114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई।
क्या अब क्या क्या बताइए, वो ओके वो तो 7,000 है। हमारे यहाँ तो भगवान राम की जो कुंडली निकली है वो जब कुंडली नासा ओके के प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डाली गई ओके तो 7,114 समथिंग बीसी की डेट निकल आई। ओके अब नाइस बताइए, वेरी ऐसे तो नाइस मैं नहीं मानता कि वो डेट सही है, उसको उसके अंदर नक्षत्रों का कैलकुलेशन किया जाए तो बहुत पीछे आएगा। ओह जहां बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन भगवान राम के बर्थ की तारीख 7000 बीसी से भी So पहले boys, he is not claiming कि भगवान राम था कि नहीं है. He is claiming कि भगवान राम का कुंडली मिला है. Bhagwan Ram, we have got so many evidence of Bhagwan Ram. You know, we have found a samadhi of Bhagwan Ram too. We have found evidence of toys used by Bhagwan Ram. We can find the evidence of kundli of Bhagwan Ram, and that kundli can be dated back to some 7,000 BC. I mean, that's amazing. The years that flies away with them. I mean, historically, archaeologically, I mean, amazing. Nice. आते हैं। वहीं आजकल के चमत्कारी Oh, बाबा how इससे can और we भी leave बड़ा leave estimate him? लाते हैं। सही बात है, हमारे सही बात है। राम जी 8,70,000 वर्ष के पहले ये हुआ ना बात, ये हुआ ना बात। और इसके ज्यादा भी हो सकते हैं, तय नहीं हम कर रहे हैं। I have now been doing history for the past 10 years. मैं इतनी श्योर नहीं होती, लोग इतने श्योर होके घूमते हैं ऐसे पता नहीं सब उनको इतिहास आता है। This is the Ranveer Alavadia style of Yeah, because ma'am, you are not sure. जितना हम we have a history of lakhs of years. Means before they were dinosaurs, we were carrying Veds. साधु were carrying Ved इधर उधर उधर जा रहे थे वेद लेके. Because किसी को तो पढ़ाना है, तो डायनासोर को बैठा के पढ़ा रहे थे, वेद पढ़ा रहे थे. They are interested in Ved, so seems like a good choice for them. So people are very confident कि it's happened 7,000 years or before, or lakhs of years and or before, but I know it's before. That's the idea. We know it's before. That's it. Can't deny it. पर every video should be very definitive. Very इसलिए def- कम से कम नहीं तो 10 अलग टाइमलाइन दिए हैं महाभारत और रामायण के अलग अलग गेस्ट ने। हाँ, so that in itself is a very shocking thing because especially for a time period जहाँ archaeological evidence बहुत कम है, उसके बारे में तो there are only more and more questions and very few answers. Right. और आज के पोस्ट ट्रूथ युग में बेसिक We क्वेश्चन should be able to make a collage of all this videos जहाँ पे वो बात कर रहा है एक ही क्वेश्चन कि महाभारत कब हुआ है, महाभारत कब हुआ है, एंड एवरीबॉडी सेइंग कोई बोल रहा 7,000, कोई बोल रहा 1,00,000, है ना. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि उनका डेटा कितना गलत है और कितना फेक है. एज सिंपल एज दैट. इतना दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है. पूछना ही एक क्रांतिकारी एक्ट हो चुका है क्योंकि हमारी मेजॉरिटी को इमोशनली भड़काया जा रहा है उन लोगों के खिलाफ जो हिंदू धर्म पे किए गए किसी भी क्लेम पर कोई भी सवाल उठाते हैं। अच्छा, अब आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपके पिताजी काल्पनिक कोई कहे कैसा लगेगा बताओ? तो हमारे राम हमारे बाप हैं, हमारे राम काल्पनिक कोई कहेगा हमें अच्छा लगेगा या बुरा? तो ठोको 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 ठोको. कोई एक उंगली उठाए और 100 हिंदुत्ववादी उसकी उंगली तोड़ दे तो दूसरे विचार भी ना कर पाए। ये होता है हिंदुत्व. और एक तरफ जहां मेन स्ट्रीम मीडिया पे खुलेआम ऐसे थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूट्यूब पर बड़े बड़े क्रिएटर इस डेंजरस पॉलिटिक्स को अपना इनडायरेक्ट सपोर्ट देते हैं बाय ब्लेमिंग हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स इंस्टेड ऑफ चेकिंग देयर ओन फैक्ट्स। राइट. हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में गलत इन्फॉर्मेशन और बुरी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन आपको दुख देगी, वो इन्फॉर्मेशन डालकर पहले तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख पहुंचा रहे हो, आप उनका Ranveer Alavadia becomes very sad by not reading the text of his girlfriend who says that she broke up with him. But he becomes very sad when he looks at the history books or when he goes through, you know, the chapters of history book. He becomes very sad, very nostalgic about it. He becomes defenseless. He becomes, you know, demotivated as he reads the history book. He's done with it. एटीट्यूड बदल रहे हो और उन्हें वो थोड़ी लूजर मेंटालिटी दे रहे हो, बिल्कुल उनसे वॉरियर मेंटालिटी छीन रहे हो। तो अब फैसला आपका है, आपको वॉरियर मेंटालिटी चाहिए या एक लॉजिकल रैशनल मेंटालिटी? Dadang. Ooh, awesome episode that was. That was really awesome episode, boys. अब बताओ जनता कि अगर आपको क्या चाहिए? Do you want people to, you know about Ramayana histories
or do you want to know about the evolution of mankind and things like that? Well, we have another video for you that will recommend all the suggestions made by the BJP ruled states to make recommendations in the NCERT syllabus. So which are tops one of the another. One tries to top from another. So we have to look into it. But uske pehle, as we have already mentioned, Dr. Ruchika Sharma, eyeshadow and इतिहास, we need to check her out too. Let's see कोई hot topic है कि नहीं हमारे पास. Is homosexuality acceptable in Hinduism? Same sex? Let's see. Kama Sutra or Vatsyayana? Kama Sutra Vatsyayana, the classical burden of translation. Let's see what it says. Interesting. Despite Hindu legal treatises such as the Manusmriti outlawing homosexuality in chapter 11 verse 67 and threatening excommunication from one's caste community, many other Sanskrit texts inform us that not only did homosexuality exist, it's quite popular among Hindus. One such text that has been quite telling in this regard is Vatsyayana's Kama Sutra, a well-known work of 3rd century CE on erotics. In its chapter 2, section Sutra, well-known work of 3rd century CE on erotics, and that's not written by any Brahmins or Hindus. 9 verses 35 and 36, Kama Sutra talks about oral sex that can be performed between two city-dwelling men, that is Nagarika, and is termed Sadharan, meaning ordinary or normal sexual act between two willing individuals. These set of acts, that is oral sex, can also be performed between two willing women. What the Kama Sutra says parties with scores of sculptures on temples such as the Khajuraho temple that depict homosexuality rather freely and in vivid detail. This makes it quite clear that despite the legal censure, homosexuality was a common practice in pre-modern Hindu society. To know about the status of homosexuality in Islam, click on the link provided in the description box and the comments section. Well, not only homosexuality, people in Hinduism used to get animals such as snakes and other things and put up their ass just for pleasure as a dildo, I guess, because that time they wouldn't. I mean, Romans had some wooden dildo or stone dildos at that time, but in India we couldn't find any dildos because people were using snakes, live snakes up their ass. That's a pleasure, boy. That day we were looking at a video of Upmanyu, where he was talking about getting high on snake poison, right? A snake bites you on it. So we were getting high on snake from so long. That's why we are called the land of snakes, bros. Interesting. She has an accent. Hidden Mughal history of your dress. Okay, let's see this one. Last one. हालांकि मुगल दरबार में ईद जोरों शोर से मनाई जाती थी, ईद को मुगलों की नायाब पेंटिंग्स में दर्शाया गया। इलस्ट्रेटेड बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर के पोते अकबर का प्रोजेक्ट था, जहां बाबर का चागताई की फारसी ट्रांसलेशन हुई है और उसे खूबसूरत पेंटिंग से भी सजाया गया है। ऐसी ही एक अद्भुत पेंटिंग इलस्ट्रेटेड बाबरनामा की 5 कॉपीज में से एक का हिस्सा है और उसका टाइटल है एम्परर बाबर ग्रीटिंग कोर्टियर्स ऑन द ओकेजन ऑफ ईद फेस्टिवल। यह पेंटिंग शायद बाबरनामा की पहली कॉपी का हिस्सा थी, जिसकी पेंटिंग्स अब दुनिया भर की प्राइवेट और पब्लिक कलेक्शंस का हिस्सा है। इस पेंटिंग में बाबर को अपने महल के कोर्टयार्ड के बरामदे में अपने तख्त पे बैठे दिखाया है और उनके सामने खड़े कोर्टियर उन्हें सलामी दे रहे हैं। इस पेंटिंग में एक सच्ची मुगल पेंटिंग की तरह 2 से 3 दृश्य बनाए हैं। बाबर की ईद का सीन बीच में और उसके आगे 2 घुड़सवार महल से विदा ले रहे हैं और पीछे में बाकी महल दिखाया गया है, जिनकी खिड़कियों में लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये महल है जहाँ पे खिड़कियां बात कर रहे हैं। कितना सुंदर ये पेंटिंग बनाया गया है विद दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस आर्किटेक्चर की। देखो ये फोर्ट है, फोर्ट के वॉल के बाहर ये दिख रहा है दूसरे एरिया में, where we can see the towers coming outside of this painting like a 3D. Nice. And look at this. और एक यहाँ पे आ रहा था। ये आगे का जो सीन है, look at this architecture also, कि यहाँ पे बाबर बैठा हुआ है और this is like a stage, right? And this comes down, जहाँ पे नीचे कुछ चल रहा है. And the people are coming here, like passing by or something, right? This is like a stage which is above and this is like a below. I mean, beautifully done. I mean, marvelous. पीछे में बाकी महल दिखाया गया है, जिनकी खिड़कियों में लोग आपस में बातें कर रहे हैं। This one. Again, once again. 1895 की बनी ये पेंटिंग आर्किटेक्चर को भी बखूबी दर्शाती है, जो कि एक सच्ची मुगल पेंटिंग की निशानी है। Nice. Thank you. बहुत ही मजा आया। मुझे अगर ऐसे ही इनके जैसे बोलना है ना, तो व्हाट विल आई डू, आई विल से। सो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली हो
अगर आपको मज़ा आया है वीडियो देखने पे तो आप प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए, सारे बेल बटन दबाइए, जितने भी बटन हो सकते हैं उसको सारे दबाइए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे प्रयासों के साथ जुड़िए। इंग्लिश में बोलने में लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, फोर्स एंड होस। प्लीज़ अगर इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ प्लीज़ कनेक्ट विद अस, join us in all the fronts, all the channels, so that we can grow as far as possible. Thanks. बहुत ही अच्छा वीडियो था the official PeeingHuman का, but we have reviewed it for a long time, but yeah, but it was worth it. I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa.